اگر وہ فالو ہوتے ہیں تو وہی فالو ہو سکتے ہیں، یا پھر جو تھوڑے لوگ کیا ہے اب میں جیسا بک میں لکھائی ویسا فالو ہوتے، تکبیر کیا ہے اللہ اکبر کہتے رہتے، تو وہ بھی کیا ہے ہم لوگ کر سکتے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے غلطی کی، لیکن یہ ہاتھ اٹھانے کا عادت نہیں۔ ہاں ضرورت نہیں، ضرورت بھی نہیں ہے، اگر آپ کو عادت نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے، آپ جو اللہ اکبر کہتے ہیں نا وہی کافی ہے آپ کے لیے، تو اس طرح بھی ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سنتیں ہیں جو کیا ہے ہم لوگ کو ہمارے نماز کے لیے ثواب کا ذریعہ بنتے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، رفع دین کرنا ثابت ہے، رفع دین نہیں کرنا بھی ثابت ہے، تو کیا ہے ہم لوگ کو اب ہمیں جس طرح سے ہماری سہولت ہے، دیکھیے فقہ میں جو بھی مسائل آتے ہیں اس میں کیا ہے ہم لوگ کو اعتدال کی راہ اختیار کرنا ہے، پورا ایک ہی چنات کر دینا نہیں، ایسا کرنا نہیں ویسا کرنا، ویسا کچھ بھی نہیں ادا کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے کیجیے، کیونکہ یہ شرطیں کیا ہیں فرائض نہیں ہے نا ماں، سنتیں ہیں یہ۔ ٹھیک ہے باجی، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگا کیا ہے پیر تک کو یہ نماز کی سنت ہے، کوشچن پورا آپ لوگا یاد کر دینا 19 پوائنٹ، اور میں انشاءاللہ کل شام تک آپ کو جتنا لیسن ہوا اتنا تک کیا ہے نوٹس ڈالوں گی، پیر تک آپ کو نوٹس بھی کمپلیٹ کرنا ہے یہ 3 دن میں، انشاءاللہ ہوا تو میں شام تک ڈالتی، یا پھر کیا ہے کل شام تک دیتی۔ تو ہم لوگ اب نیکسٹ لیسن شروع کریں گے۔ نیکسٹ لیسن کیا ہے، ہم لوگ کل مساجد کے بارے میں پڑھے ہیں نا، تو آج دیکھیے سترہ کے بارے میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سترہ کے لفظی معنی پردہ یا اوٹ کے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ انسان چیز رکھ لے تاکہ کوئی شخص اس کے آگے سے نہ رہے۔ دیکھیں سترہ بولے تو کیا ہے فلانی یعنی باجی کوئی تمہاری چیز بات یا تو کٹ کٹ ہوتی ہے باجی۔ اچھا ایک منٹ رکیے، میرا نیٹ تھوڑا یہ ہے سلو ہے، دیکھتی ہوں ایک منٹ۔ اب آ رہی ماں میری آواز؟ آتی ہے، تھوڑا کٹ کٹ بیچ میں آ جاتا ہے ایک دم۔ اچھا، تو تھوڑا نیٹ کا پرابلم ہے، اس کے وجہ سے تھوڑا ڈل ہے، پھر بھی نہیں آتے جب پھر بھی میرے کو بولو، میں جو پوائنٹ مس ہوا پھر بھی بولتی آپ کو۔ جی ٹھیک ہے باجی۔ اچھی بات ہے، تو میں اور ایک بات بڑی اچھی دیکھو، یہ سوال کا گروپ میں آپ لوگا کیا ہے سوال کو دیکھتے ہوئے، وہ آپ لوگا کیا ہے ریکارڈنگ کو سنتے ہوئے ایک بار سوال پڑھ لیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی، ریکارڈنگ دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے سترہ کے لفظی معنی ہے پردہ یا اوٹ کے، اوٹ مطلب بھی پیج نمبر بولو کو باجی بولتے، ذرا۔ پیج نمبر 152۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ انسان نماز پڑھتے ہوئے اپنے سامنے کوئی چیز تاکہ کوئی شخص اس کے آگے سے نہ گزرے، یعنی اب ہمیں ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے جہاں لوگوں کے سامنے سے گزرنے کا اندیشہ ہے، تو ویسی جگہ کیا ہے ہم لوگوں کو ایک چیز کیا ہے سامنے رکھ لینا ہے تاکہ لوگ گزرے تو بھی ہمارے کو کیا بھی ہماری نماز کو کوئی بھی فرق نہ پڑے۔ تو دیکھیے سترے کا حکم، نماز پڑھتے ہوئے اپنے آگے سترہ بنانا مستحب ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ سترے کی طرف نماز پڑھے، اور اسے چاہیے کہ اس کے قریب ہو، یعنی جو ہمیں سترہ آڑا رکھتے اس کے قریب پڑھنا، اس کے نزدیک پڑھنا، وہ سترے کے بھی ہمارے بیچ میں بہت زیادہ اتنا جگہ نہ رہنا کہ کوئی ہمارے سامنے سے گزر جائے، بلکہ ہمیں کریکٹ اب ہمیں سجدہ کا کرتے کہ اس کے تھوڑا سامنے کیا ہے سترے کو رکھنا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے روز نکلتے تو ایک نیزہ ساتھ لے جانے کا حکم دیتے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گاڑ دیا جاتا اور آپ اس کی طرف نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے تھے، آپ سفر میں بھی ایسا ہی کرتے۔ اب عیدگاہ کیا ہے ماں، عیدگاہ بھی اتنا کھلا میدان رہتا عید کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ایک نیزہ لے جاتے سوگتے، لے جا کے اسے سامنے گاڑ دیتے، یعنی اب وہ سامنے گاڑنے سے کیا ہوتا، ہمارے سامنے سے لوگ گزرے تو بھی کیا بھی عیب نہیں ہوتا، غلط نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے سفر کی حالت میں رہنے دو یا پھر عیدگاہ جاتے وقت کیا ہے نیزے کو ساتھ لے جاتے ہیں بول کر بتایا جاتا ہے۔
بعض موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر سترے کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی فضا میں نماز پڑھی اور آپ کے سامنے کوئی چیز نہ تھی، یعنی تھوڑے تھوڑے موقع پر کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سترا نہیں جیسا بھی کیا تو کون سے ٹائم پہ پڑھ کر رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب لوگا کوئی بھی سامنے سے نہیں جانے کا یا پھر کون نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، لوگا سامنے سے جانے کا اندیشہ نہیں ہے، ویسے ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سترا نہیں رکھ کے نماز پڑھ کے رہتے۔ دوسرا پوائنٹ دیکھیے، سترا کن چیزوں سے بنتا ہے؟ نمازی کا اپنے رکھ لینے یا گاڑ لینے سترا کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو زمین پر ایک لکیر کھینچنے سے بھی یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ کوئی چیز نہیں ہے تو ہمیں خالی سامنے ایک لکیر کھینچے تو بھی ہم لگا سترے کا مقصد پورا ہو جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ اپنی چیز رکھ لے، اگر کوئی چیز نہ پائے چھڑی گالے، اگر اس کے چھڑی بھی نہ ہو تو ایک لکیر کھینچ لے، اس کے بعد اس کے آگے سے کچھ گزرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ سب ہم نہ معلوم ہے نا کہ ہمیں کوسا تو چیز رکھ لینا، کیا بھی چیز نہیں ملا تو ایک لکیر تو کھینچ لینا۔ یہ کون سے موقع پر ہے؟ جب کیا ہے ایسا ڈر ہو کہ لوگ ہمارے سامنے سے گزر جاتے، کیا کی کتے سو ڈر ہے جگہ، ایسے حالات پر ایسے جگہوں میں کیا ہے ہمیں سترا رکھنا ہے۔ اب گھر میں کیا ہے ہم لوگ قبلے کے قریب ہو کچھ نماز پڑھتے نا، تو ہم لوگوں کو اس کی کیا بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم لوگ کا کیا ہے گھر میں کیا ہے قبلہ کدھر ہے ادھر رکھتے، سامنے سے کوئی بھی جانے کا بھی اندیشہ نہیں رہتا، تو ایسے ٹائم پہ سترا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ماں گھر میں۔ تو تینواں پوائنٹ دیکھیے، سترا کا قریب اور کچھ دائیں یا بائیں طرف ہونا۔ مستحب یہ ہے کہ نمازی اور سترے کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہو کہ وہ سجدہ کر سکے۔ نیز یہ بھی مستحب ہے کہ سترا بالکل سامنے نہ ہو بلکہ ذرا سا دائیں یا بائیں طرف کو ہو۔ ایک منٹ ماں، میرے کو فون آ رہا، ایک منٹ میں پھر جوائن ہوتی۔ کا قریب اور کچھ دائیں یا بائیں طرف ہونا۔ مستحب یہ ہے کہ نمازی اور سترے کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہو کہ وہ سجدہ کر سکے۔ نیز یہ بھی مستحب ہے کہ سترا بالکل سامنے نہ ہو بلکہ ذرا سا دائیں یا بائیں طرف کو ہو، یعنی بالکل سترا کیسا رہنا، بہت دور میں نہیں رکھنا۔ اب ہمیں جہاں سجدہ کرتے اس کے سامنے رہنا اتنا اور ایک بات کیا تو سیدھا نہیں رہنا بلکہ تھوڑا سیدھے ہاتھ طرف تو تھوڑا بائیں ہاتھ طرف تو ذرا ہٹا کے رکھنا۔ یہ بات بھی ہے کیا ہے بالکل سیدھا سیدھ کیا ہے سترے کو نہیں رکھنا ہے، کوئی سی چیز بھی ذرا بازو کو ہٹا کے رکھنا ہے۔ اوپر حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت گزر چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ سترا کے قریب ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور آپ کے اور دیوار کے درمیان اندازاً 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا، یعنی 3 ہاتھ کو تدوری میں کیا ہے انہیں سترا رکھو نماز پڑھے بول کر بتایا جاتا ہے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ٹہنی یا ستون یا درخت کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو یہی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے سامنے نہیں بلکہ کچھ دائیں یا بائیں طرف کیے ہوئے تھے، کچھ دائیں یا بائیں طرف رکھتے سو، ایک دم سیدھے سیدھا نہیں رکھتے سو بول کر بتایا جاتا ہے۔ آتی ہے نا ماں میری آواز؟ الحمدللہ اچھا دیا۔ ہاں اچھی بات ہے، ہاں اچھا ہے ماں، اچھی بات ہے۔ دیکھیے اس کے بعد 4واں پوائنٹ دیکھیے، امام کا سترا تمام مقتدیوں کا سترا ہے۔ جو سترا امام کا ہوگا وہی تمام مقتدیوں کا سترا سمجھا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا اور میں اس وقت بلوغ کے قریب تھا، یعنی جوانی کے عمر کو قریب رہے انہوں، بلوغ بولے تو جوانی کا عمر۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में नमाज पढ़ा रहे थे। मैं सफ के कुछ हिस्से के आगे से गुजरा और गधी को चरने के लिए छोड़ दिया और फिर सफ में शामिल हो गया। उस पर किसी ने मुझे नहीं टोका। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुतरा लगा को नमाज पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं तो इन्हों गधी लेकर थोड़े सफ के थोड़े लोगा के सामने से गुजर जाते, बाद में गधी को चराने छोड़ देते और नमाज में दाखिल हो जाते। तो अब नमाज पढ़ने के बाद कोई उनको क्या भी नहीं बोलते। किस वजह से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुतरा है वो तमाम लोगों की तरफ से अदा हो गया, तमाम मुक्तदियों की तरफ से भी सुतरा अदा हो गया। अब वो लगा के सामने से गुजरने या ना गुजरने से किसी भी क्या भी फर्क पड़ता नहीं बोलकर बताया जाता है। उसके बाद 5वां पॉइंट, नमाजी के आगे से गुजरने की हुर्मत। हजरत अबू जुहैम अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाजी के आगे से गुजरता है, अगर उसे मालूम होता कि उसका कितना बड़ा गुनाह, तो आगे से गुजरने की निस्बत उसके लिए 40 साल या 40 महीने या 40 दिन तक बात के दर्शक जमीन पर खड़ा रहना बेहतर होता। अलबत्ता मस्जिद हराम मक्के मुअज्जमा में नमाजी के आगे से गुजरने की रुख्सत है। तो यानी किसी भी हालत में नमाज पढ़ने वाले के सामने से नहीं गुजरना। तो उसका क्या गुनाह होता कि मालूम होता इंसान के 40 दिन की क्या है, 40 महीने की क्या है, वाच सड़कों रहना पसंद करता लेकिन सामने से गुजरना पसंद नहीं करता बोलकर यहाँ पर बताया जाता है। लेकिन मस्जिद हराम में नमाजी के आगे से गुजर सकते कभी, ये बात यहाँ पर मालूम हुई है। हजरत मतलब बिन अबी विदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने बाब बनी सहम के करीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे से गुजर रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दरमियान कोई सुतरा नहीं था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हरम के सामने नमाज पढ़ रहे थे तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुजरते रहे तो भी और सुतरा भी नहीं रखे थे, यानी वहां पर पढ़ सकते शायद। ये वईद कितने दूर तक गुजरने पर है उसकी अहादीस में तसरीह नहीं, अहादीस में सिर्फ बैना यदा यानी आगे का लफ्ज आता है। यानी ये वईद यानी जो हदीस में जो गुनाह का जो बताया गया वो कितना दूर के ऊपर हमें सामने खड़े की वो साबित नहीं है बोलकर बताया जाता है, बल्कि सिर्फ आगे कर बताए। अब वो आगे कहते तो कितना दूरी के ऊपर आगे खड़ना वो नहीं बताए, लेकिन मकसद ये है कि नमाज पढ़ने वाले के बिल्कुल आगे से नहीं गुजरना। 6वां पॉइंट देखिए, नमाजी का किसी को अपने आगे गुजरने से रोकना। हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपने सामने किसी चीज को नमाज पढ़ रहा हो और फिर आगे से गुजरना चाहे तो उसे चाहिए कि उसे हटाए, अगर वो नहीं तो उसे लड़े यानी हाथ बढ़ाकर रोके, इसलिए कि वो शैतान है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताते हैं यहाँ पर, तुम्हें सुतरा बनाकर नमाज पढ़ रहे हैं फिर भी कोई शख्स तुम्हारे सामने से गुजरता है तो उसे रोकना, हाथ से तो रोकना या फिर इशारतन तो रोकना, वो नहीं माने तो भी उसे हाथ से रोकना है बोलकर बताया जाता है। इमाम नूवी रज़ियल्लाहु अन्हु रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये यानी अपने आगे से किसी को गुजरने से रोकना उस शख्स के लिए जायज है जो अपने आगे सुतरा बनाकर नमाज पढ़ रहा या ऐसी जगह नमाज पढ़ रहा जहाँ वो लोगों के गुजरने से महफूज हो, इस पर सबका इत्तफाक है। यानी जो शख्स तो सुतरा बनाकर नमाज पढ़ता है और ऐसी जगह पर नमाज पढ़ता है कि लोग वहां गुजरते नहीं, यानी गुजरने का कम है, वहां पर लोग गुजरने का क्या है अंदेशा कम है, तो ऐसी जगह अगर वह नमाज पढ़ता है लेकिन फिर भी कोई शख्स आता है उन सुतरा बना के नमाज पढ़ते के बावजूद भी, तो उसे क्या है इशारतन या फिर इशारतन क्या है उसे रोकने की इजाजत है, या फिर हाथ से तो भी रोक सकता वो, या फिर क्या है इशारे से तो भी कोई आवाज अल्लाह अकबर या फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की आवाज करके, मर्द के लिए आवाज है ना, तो इस तरह आवाज करके भी वो क्या है सामने से इंसान को जाने से रोक सकता बोलकर बताया जाता है यहाँ पर। तो आप लोगों को ये सुतरे के बारे में मालूम हो गया ना माँ? ये लास्ट का एक बार बोलो भाई, नमाजी को अपने आगे गुजरने से रोकना, ये और एक बार बोले तो अच्छा है। अच्छा, तो इसमें क्या बताते हैं बोले तो, जब कोई इंसान सुतरा बना को नमाज पढ़ता है, सुतरा यानी आगे कोई चीज रख के नमाज पढ़ता है, फिर भी कोई शख्स गुजरने की कोशिश करता है तो उसे रोकना है।
तुम्हें कैसा रोक सकते हैं? अबे नमाज की हालत में है ना का को समझे समझो, तुम्हें क्या तो भी कोसा तो तस्बीह बुलंद आवाज से पढ़ सकते, सुबहान अल्लाह की, अल्लाह अकबर की, इस तरह बोल के उनको अपनी आवाज को बुलंद करके उनको इशारा दे सकते। नहीं वैसा नहीं कर सके तो भी कम से कम अपने हाथ से तो भी ऐसा इस तरह से ऐसा हटा सकते उनको, ये इजाजत है बोलकर यहाँ पर बताया जाता है। अस्सलामुअलैकुम। वो वालेकुम अस्सलाम, सूत्र बोलिए। अब हम नमाज घर में पढ़ते ना, सामने क्या की बॉटल की क्या की रखो पढ़ते, सामने से फिरते रहते, वैसा नहीं फिरना। नहीं परवाह नहीं, अगर आप सुतरा रख लिए ना, सुतरा क्या है एक लकीर खींचे तो भी जायज है बोले, तो अब आप बॉटल रख के नमाज पढ़ते हैं, बॉटल सीधा नहीं रख लेना, थोड़ा इधर की उधर की रखना, रख के सामने नमाज से पढ़े फिर तो तो अब परवाह नहीं ना। जी हाँ नहीं कुछ भी नहीं होता, एक लकीर से भी सुतरा का मकसद पूरा हो जाता है माँ, एक अभी लकीर से यहाँ भी वो सुतरा का नमाजी मकसद बोल पूरा रहे हो सो जाता। अभी सूत्रा जी रखने के बाद भी फिरे तो वो फिरे या नहीं कैसे बोलते हैं ना यहाँ हाँ, अबू सुतरा कहे तो हम्म, नमाजी और सुतरे के दरमियान सी, समझ में अच्छा अच्छा आया? हम्म नमाजी और सुतरे के दरमियान से नहीं आप गुजरना, समझ में आएगा। सुतरा पार होकर गुजर सकता, समझ में आया? अच्छा सुतरे के आगे से उन गुजर सकता, क्या भी होता नहीं, नमाजी और सुतरे के दरमियान से नहीं गुजरना वो। अच्छा माजी हाँ समझ में आया। अच्छा अच्छा, तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना माँ, ये इसका सुतरे का। तो अब देखिए उसके बाद का लेसन नमाज बाजमात के अहकाम, ये लेसन नहीं है माँ सिलेबस में, निकाल दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लेसन ततव्वु है, उसके बाद का लेसन देखिए 170 पर 8 178 पेज, ततव्वु सुन्नत और नफिल नमाजें, यहाँ पर आ जाइए सब लोग। निकाले माँ? जी बाजी। अच्छा तो देखिए ततव्वु, देखिए सुन्नत और नफिल नमाजें, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ततव्वु सुन्नत और नफिल नमाज, फराइज की अदायगी में जो नुक्स यानी जो कमी या कसर रह जाती है, उसकी तलाफी के लिए ये दूसरी नमाजें रखी गई हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के अमाल में से जिस चीज का सबसे पहले हिसाब व किताब होगा वो नमाज है। ये हमें पहले भी पढ़े ना, तो अल्लाह ताला सबसे पहले जो सवाल करता वो नमाज के बारे में ही रहता। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से खुद जानने के बावजूद दरियाफ्त करेगा, खुद जानने के बावजूद क्या बोलकर दरियाफ्त करता, मेरे बंदे की नमाज को देखो, आया उसने उसे पूरा किया है या उसमें कोई कमी है बोल के। अल्लाह ताला को हर एक मालूम, अल्लाह ताला हम लोग को मालूम ना कि अल्लाह ताला हमारे गर्दन के रख से भी बहुत करीब रहता, फिर भी क्या है अल्लाह ताला क्या है शहादत के तौर पर फरिश्तों से सवाल करता है अल्लाह ताला कि देखो मेरे बंदे की नमाज में क्या तो कमी है बोलकर उनसे पूछता है अल्लाह ताला। अगर वो पूरी हुई तो उसे मुकम्मल लिखा जाएगा, और अगर उसमें कुछ कमी हुई तो अल्लाह ताला फरमाएगा देखो कि इस बंदे की कोई जायद फर्ज है, यानी फर्ज नमाज से कोई ज्यादा नमाज क्या तो पढ़ा क्या ये शख्स बोलकर पूछते हैं अल्लाह ताला। अगर अगर हुई हो अगर हुई तो अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे बंदे की फर्ज नमाज को इस जायद नमाज से पूरा कर दो, फिर इस तरह तमाम अमाल का जायजा लिया जाएगा। देखे, तो जब हमारा हिसाब किताब होता तो अल्लाह ताला क्या है, हम लोगों की फर्ज नमाज में क्या तो कमी रहेगी समझो, तो अल्लाह ताला फिर फरिश्ते से पूछता करते कि वो इंसान फर्ज के अलावा कोई नमाजें पढ़े क्या। तो इस तरह से अगर वो कोई फर्ज के अलावा सुन्नत और नवाफिल अगर पढ़ के है तो अल्लाह ताला क्या है क़यामत के दिन हमारे फर्ज नमाजों की कमी को क्या है ये सुन्नत और नवाफिल के जरिए भर्ती करता बोलकर इससे ये हदीस से हम लोगों को मालूम होता है। तो देखिए कितना बड़ा अल्लाह ताला एक एहसान रखा है बंदों पर कि क्या है अपने फर्ज नमाजों को क्या है अल्लाह ताला सुन्नत और नफिल के जरिए भी भरपाई करता बोलकर बताया जाता है। तो इसलिए हम लोगों को क्या है सिर्फ अब हम लोग बाज लोग क्या करते रहते, टाइम की कमी की वजह से, नहीं तो है नहीं जल्दी की वजह से, नहीं तो कामों की वजह से हम लोग क्या है सिर्फ फर्ज पढ़ लेके छोड़ डालते रहते। तो इस देखिए फिर अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन हमारे फर्जों की कमी की तलाफी होना के तो हमें क्या करना, नफिल भी पढ़ना है,
भी पढ़ना है, ये पढ़े तो हमारा फर्ज में क्या तो कमी बेची है तो वह पूरा होता। तो इसलिए हम लोगों को क्या है, फराइज के साथ नवाफिल और सुन्नतों का भी खास तौर से ज्यादा तौर से पढ़ने की कोशिश करना। अब सुन्नतें तो हम लोग को हमारे नमाजों के साथ जो सुन्नतें हैं वो भी पढ़ सकते। इसके अलावा पढ़ना बोले तो भी हम लोग को तहियतुल वजू की नमाज है, चाश्त की नमाज है, इशराक की नमाज है, ये तमाम नवाफिल अगर हमें पढ़ेंगे तो एक और हदीस भी है ना कि क्या बोलकर कि जब हमारे फर्ज नमाजों की कमी हो जाती तो अल्लाह ताला क्या है तराजू में ये नवाफिल के जरिए क्या है हमारी मदद करता बोलकर भी हमारे क्या है हदीस में साबित है। तो इस तरह से क्या है हम लोगों को फर्ज के अलावा नवाफिल और सुन्नतों का भी एहतमाम करना है। समझ में आया ना आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। ठीक है। तो देखिए उसके बाद देखिए हजरत रबिया बिन मालिक असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, मांगो। मैंने अर्ज किया, "ए अल्लाह के रसूल, मैं जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराफकत चाहता हूँ। फरमाया, कुछ और भी? मैंने अर्ज किया, बस यही मेरी दरख्वास्त है। तो फरमाया, तो तुम सजदों की कसरत के जरिए अपने नफ्स के मुकाबले में मेरी मदद करो। क्या बोलते हैं कि एक सहाबी आको पूछते कि क्या मांगना है, कि मांगो। क्या पूछते कि पूछो बोलकर पूछे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते तो सहाबी बोलते हैं कि मैं जन्नत में आपकी मुराफकत चाहता हूँ। मुराफकत बोले तो आपके साथ रहना मैं पसंद करता हूँ, आप आपकी सोहबत में रहना चाहता हूँ। कब बोलते हो? अभी और क्या मांगना पसंद करते? क्या बोले तो नहीं, बस ये मेरा ख्वाहिश बोलकर उन्होंने बोलते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते कहते उसके लिए, अपने सजदों को तो तुम सजदों की कसरत के जरिए अपने नफ्स के मुकाबले में मेरी मदद करो। यानी तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सजदे करो। सजदे करने का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा नमाजों को अदा करो और अपने नफ्स के मुकाबले में, यानी नफ्स नहीं, तुम्हारा नफ्स तुम ना को रोके तो भी तुम्हें ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ने के लिए आमादा हो। जब क्या है तुम ना को ये जो तुम्हें जो ख्वाहिश तलब करे उसे अल्लाह ताला पूरा करता बोलकर बताया जाता है। तो इस हदीस से हम ना को क्या मालूम हुआ कि जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत की खुशखबरी भी क्या है, ज्यादा से ज्यादा नवाफिल और सुन्नतें पढ़ने के जरिए इंसान को हासिल हो सकती है। कहते से खुशखबरी भी हमें ये हदीस के जरिए मालूम होती है। अब आप लोगों को जैसा कि नफिल नमाजों में बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस भी हमें मालूम है ना कि उनको अल्लाह ताला जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पूछते हैं तो मेराज के सफर के टाइम पे जन्नत में क्या है, मेरे से पहला मैं ये तुम्हारे जूतों की आवाज सुन तुम्हें बोलकर बोले तो उन्होंने क्या बोलते, मैं कुछ भी नहीं किया अल्लाह के रसूल, मैं सिर्फ क्या है रोजाना तहियतुल वजू की नमाज पढ़ता था बोलकर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जवाब देते। तो देखिए जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका सफर था। तो इसका मतलब क्या है कि तहियतुल वजू की उतनी अहमियत है। हालांकि तहियतुल वजू एक नफिल नमाज है। तो यहाँ पर इसलिए हम ना नफिला चुना, सुन्नता चुना, फर्ज पढ़ ले तो बस ले को हमें कभी नहीं सोचना, क्योंकि ये छोटी छोटी इबादतें हमारी बड़ी इबादत को पूरे करने वाली है। ये छोटी इबादतें हमारी बड़ी इबादत की भरपाई करने वाली है। तो इसलिए हम लोगों को जिस तरह हमें फर्ज नमाज पढ़ते उसी तरह सुन्नत और नफिल का भी एहतमाम करना। अल्लाह ताला आपको और मेरे को भी क्या है ये नमाजों को अदा करने की जरूर तौफीक अता करे और इसके अलावा और ज्यादा नमाजें पढ़ने की भी अल्लाह ताला हम लोग को तौफीक दे। उसके बाद देखिए सुन्नत और नफिल नमाजों के अहकाम। पहला, उनका घर पर पढ़ना मुस्तहब है, यानी सुन्नत और नफिले घर के अंदर पढ़ना मुस्तहब है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स मस्जिद में नमाज पढ़े तो उसे चाहिए कि अपनी नमाज का कुछ हिस्सा अपने घर के लिए रख ले, इसलिए कि अल्लाह ताला उसकी नमाज के जरिए उसके घर में खैर बरकत लाने वाला है, खैर बरकत करने वाला है। तो ये मर्दों के लिए बताया गया है कि जो सुन्नतें और नफिले जो रहती वो फर्ज के अलावा घर में पढ़ ले तो बेहतर है, क्योंकि घर में भी खैर बरकत होना ना। तो अब यहाँ पर एक गुंजाइश है कि औरतें घर में नमाज पढ़ती हैं, तो मर्दों को क्या है सुन्नत और नफिल वो क्या है मस्जिद में भी अदा कर सकते या फिर हुआ तो घर में भी अदा कर सकते।
हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी नमाजों का कुछ हिस्सा अपने घरों में अदा करो और उन्हें खबरें ना बनाओ। खबरें यानी अब घर में अल्लाह ताला की इबादत करने वाले कौन नहीं है, अब तुम्हें पूरी नमाज क्या है मस्जिद में पढ़ते रहे समझो, घर ही वीरान हो जाता ना। तो इसलिए बताते हैं कि घरों में भी अल्लाह का जिक्र रखना है, घर में भी कोई होना है जो अल्लाह की इबादत करना है। तो इसलिए तो बताने का मकसद ये है कि अपने घर में भी अल्लाह ताला की इबादत होना है। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी की घर में नमाज मेरी उस मस्जिद से अफजल है मगर फर्ज नमाज, यानी आदमी की नमाज घर में अफजल है लेकिन फर्ज नमाज सिवाय फर्ज नमाज के तब बोलते हैं, यानी सुन्नत और नफिला घर में पढ़ना बेहतर है बोलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। अब यहाँ पर देखिए नीचे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम सूरी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक रात के नवाफिल का घर में और दिन के नवाफिल का मस्जिद में पढ़ना अफजल है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मसलक में यह बात बताते हैं, ऐसे रात और दिन को अलग करके बताते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, इनमें सजदों की कसरत के बजाय खियाम का लंबा करना अफजल है। ज्यादा सजदे करने के बजाय क्या है, अब देखिए हम लोग मिसाल के तौर पर अब हमें नफिला पढ़ेंगे समझते, ज्यादा नमाजा पढ़ना ना बोलकर 50 रकात नफिला पढ़ लेते रहते, लेकिन छोटे छोटे सूरे पढ़ लेते रहे, 50 रकात अदा हो जाते, एक आधा घंटे में 1 घंटे में अदा कर डाल सकते, समझो 1 घंटे में अदा कर डाल सकते। तो उससे बेहतर ये है कि तुम्हें 10 रकात ईच पढ़ो, 12 रकात ईच पढ़ो, लेकिन लंबे लंबे खिराता पढ़ो, तो ये अफजल है। यहाँ पर हजरत मुगैरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रात के क़ियाम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर लंबी नमाज पढ़ते कि आपके पाँव वरम आलूदा हो जाते, यानी सूज जाते। ये मालूम ही है ना हमारे को हदीस है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो इस तरह यानी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या है मालूम भी नहीं होता कि वो क्या है कितनी देर नमाज में खड़े हैं। उसके बाद देखिए हजरत अब्दुल्ला बिन हबशी खश अमीर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि सबसे बेहतर अमल कौन सा है, फरमाया नमाज में क़ियाम का लंबा करना, यानी नमाज में ज्यादा से ज्यादा क़िरात में खड़ना क्या है बेहतरीन अमल है बोलकर बताया जाता है। तो उसके बाद देखिए ना तीसरा पॉइंट, इनका बिला उज़्र भी बैठकर पढ़ना जायज है, यानी सुन्नत और नफिल क्या है हम लोग हम ना तो क्या मजबूरी नहीं है, क्या उज़्र नहीं है तो भी बैठ के पढ़ सकते हैं। इससे पहले हमें लेसन में पढ़े ना है, तो देखिए कैसा है इसका हुक्म। जैसा कि पहले बयान हो चुका है, अगर ताकत हो तो फर्ज नमाज का खड़े होकर पढ़ना फर्ज है, लेकिन फर्ज के अलावा दूसरी नमाजों का ताकत के बावजूद बैठकर पढ़ना भी जायज है। क्या बताते हैं, फर्ज के अलावा फर्ज नमाज तो खड़के पढ़ना ताकत है तो, लेकिन दूसरे नमाजा हम ना ताकत रहने के बावजूद भी बैठ कर पढ़ सकते। अगरचे बैठकर नमाज पढ़ने का सवाब खड़े होकर पढ़ने से आधा है, लेकिन हमें बैठ कर नमाज पढ़े तो क्या होता, हमारे खड़े होकर नमाज पढ़ने में सवाब आधा ही हो जाता बोलकर यहाँ पर बताया जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मुझे ये हदीस बयान की गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठकर नमाज पढ़ने का सवाब आधी नमाज के बराबर है। बैठकर नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला आधा सवाब देता, नहीं मजबूरी से बीमारी से पढ़े तो अल्लाह ताला पूरा सवाब देता। सुन्नत और नफिल नमाज का कुछ हिस्सा खड़े होकर और कुछ हिस्सा बैठकर पढ़ना भी जायज है। एक रकात खड़ को पढ़ ले, एक रकात बैठ को पढ़ ले, ऐसा भी पढ़ सकते हमें। बल्कि एक रकात को कुछ देर खड़े और कुछ देर बैठ कर भी पढ़ना जायज है। पहले बैठ लिया जाए या बाद में, वैसा नहीं एक एक रकात ही नहीं, बल्कि एक रकात में थोड़ी देर खड़ को भी खिरात कर को, नहीं खड़ सको उसके बाद बैठ को खिरात कर ले तो भी जायज है बोलकर बताया जाता है। समझ में आया ना ये पॉइंट आपको? अब तुम्हें एक रकात में खिरात पढ़ते हैं, पैरा दर्द हुए तो आधा खिरात पढ़ना दे रही, तुम्हें बैठ को पढ़ ले सकते हो खिराते, नहीं पहले शुरू करते जब तुम्हें बैठ के खिरात शुरू करे, बैठ के नमाज पढ़ लेंगे समझे, उसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या है जरा देर के बाद खड़ को खिरात पढ़ लिए तो भी वो भी जायज है।
अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से दरियाफ्त किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 रकातें बैठकर अदा फरमाते थे तो क्या करते थे? फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें खिलाफ फरमाते थे, जब रुकू करना चाहते खड़े हो जाते और रुकू करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते सो कहते, बैठ कर नमाज पढ़ना है तो बैठते सो, लेकिन रुकू करते वक्त माने खड़े हो जाते सो कहते, रुकू करते वक्त माने खड़े होकर रुकू कर को सजदा करते सो बोलकर बताया जाता है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ही बयान फरमाती है, मैंने रात की नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी बैठकर क़िरात फरमाते नहीं देखा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुढ़ापा आ गया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर क़िरात फरमाते, यहाँ तक कि 40 या 30 आयत रहती होकर उन्हें पढ़ते, सुना बैठकर नमाज पढ़ते सो। सुनाना नहीं बस, यहाँ पर जी सुनाना नहीं। एक मिनट में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, अगर बैठकर नमाज पढ़ना है तो बैठ को खिरात पढ़ते सो, फिर रुकू करने के लिए उठ को खड़े हो जाते सो कहते। नफिल नमाजों का जिक्र है ये, नफिल और सुन्नतों का। और एक बात क्या बताए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी रातों की नमाज में बैठ को खिरात करे नहीं करते, जब तक उनका बुढ़ापा आ जाता तब तक उन्होंने खड़कोच नमाज पढ़े जहां तक हो सके। अब कब तो भी अब बुढ़ापा आ जाको उन्हें बैठ को नमाज पढ़ते रहे तो भी अब एक 30-40 रकात उतना 4-4 5-5 6-6 7-7 10-10 रुकू भी खड़को पढ़ते सकते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब बुढ़ापा आ गया तो उन्होंने बैठ को नमाज पढ़ना को समझते, एक 2-3 रकात 2-3 रुकू पढ़ लेते सोगते कुरान में, पढ़ लेने के बाद फिर भी अभी जरा सूरा है कने उठ को खड़ जा को वो खिरात पढ़ ले को रुकू कर को सजदा कर को सलाम फेरते सोगते। तो समझ में आया आपको ये पॉइंट है। तो जहां तक मुमकिन हो सके खड़ को क़ियाम करना बेहतर है बोलकर बताया जाता है। ततव्वु के अक़साम, फर्ज के अलावा जो नमाजें हैं उनकी 2 किस्में हैं, एक मुअय्यन और दूसरी गैर मुअय्यन। गैर मुअय्यन नमाज से मुराद आम नवाफिल है जो इन औकात के अलावा जिनमें कोई नमाज पढ़ना जायज नहीं है, हर वक्त और हर तादाद में पढ़े जा सकते हैं। ये क्या नफिल नमाजें। मुअय्यन नमाज से मुराद वो तमाम नमाजें हैं जिनके औकात और रकातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। गैर मुअय्यन बोले तो नफिल नमाजा, मुअय्यन नमाजा बोले तो सुन्नतें। फिर उनकी भी 2 किस्में हैं। फिर ये सुन्नता में भी 2 किस्में, हम ना मालूम ना, सुन्नते मौकिदा, सुन्नते गैर मौकिदा। ये एक वो सुन्नतें हैं जो फर्ज नमाजों के साथ पहले या बाद में पढ़ी जाती है, दूसरी वो सुन्नतें जो दूसरी औकात और मवाक़े पर अदा की जाती है। ये अब इस सुन्नतों में नफिला में फर्क है, नफिला अलग है, सुन्नता में फिर थोड़े पढ़े जा थोड़े नहीं पढ़े जा, यानी पढ़ने से सवाब है, नहीं पढ़े तो क्या होता नहीं, थोड़े कंपलसरी पढ़ना। इस तरह सुन्नत में 2 शक्लें हैं। तो आइंदा सफात में हम इन तमाम किस्मों का अलग अलग जिक्र करेंगे। आइंदा क्या है, यानी देखिए बात का लेसन में सुन्नत रातिबा और गैर रातिबा, यानी सुन्नत मौकिदा और सुन्नत गैर मौकिदा। तो हमारा टाइम भी हो गया ना यहाँ पर, तो मैं यहाँ तक आप क्या है लेसन को खत्म करती हूँ। आमिना बाजी ज्वाइन हो गए नफिल नमाजों का, सुन्नतों का। तो सुन्नतों के बारे में और डिटेल होने आइंदा आता आपको जी इंशाल्लाह। अच्छी बात माँ। तो यहाँ तक आप लोग का क्या है वो क्वेश्चन याद कीजिए, और मैं यहाँ तक क्या है आपको नोट्स डाल देती इंशाल्लाह आज शाम तक या कल शाम तक। पीर को आप लोग मेरे को पूरी नोट्स क्या है कंप्लीट कर देना है, और वो सवाल भी पूरी तरह याद कर देना है 19 पॉइंट। ठीक है माँ, अच्छी बात वैसा है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम।